Hello students, how are you? This is my video for class 3rd in which I will explain you the chapter number 3, chapter number 4 of class 3rd from grammar section language structure. I request you all to take out language language course book from which I will explain you the chapter number 4 possessive noun. पोजेसिव नाउन्स बच्चे वो चीज़ हैं जो ये पोजेशन शो करते हैं. पोजेशन का मतलब है कि वो चीज़ शो करते हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ है वो किसे बिलोंग कर रही है. जैसे रिया इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, रियाज ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी, द बर्ड्स नेस्ट इज़ वेरी कॉजी. तो पहले सेंटेंस में आप देख सकते हो रियाज ड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि रिया की ड्रेस. रिया ड्रेस मीन्स द ड्रेस बिलोंगिंग टू रिया, यानी कि वो ड्रेस जो रिया को बिलोंग करती है. बर्ड्स नेस्ट मीन द नेस्ट बिलोंगिंग टू अ बर्ड, यानी कि वो नेस्ट जो कि एक बर्ड को बिलोंग करता है उसे हम लोग कहेंगे बर्ड्स नेस्ट. द वर्ड्स विद एपोस्ट्रॉफी एंड एस. एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है जो हम ऊपर हल्का सा कॉमा लगाते हैं उसे हम लोग एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग एस ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे पोजेसिव नाउन. A possessive noun shows who or what something belongs to. An apostrophe is used to show belonging. More example: Mohit's book, the big book belonging to Mohit. Girl's pencil, the pencil of the girl. Aman's song, the song sung by Aman. Children's book, the books meant for children. मोहित्स बुक यानी कि मोहित की किताब. गर्ल्स पेंसिल, लड़की की पेंसिल. अमन्स सॉन्ग, अमन का सॉन्ग. चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब. सिंगुलर नाउन्स आर मेड पोजेसिव बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एंड देन एस. सिंगुलर नाउन को हम लोग पोजेसिव में कैसे चेंज करते हैं कि हम वो वर्ड लिख देते हैं, फिर एपोस्ट्रॉफी डाल देते हैं और फिर एस लगा देते हैं. जैसे सारा's book is on the table. The book that belongs to Sarah is on the table. We put only apostrophe after plural noun ending in s or es. जो plural noun s, es पे ख़त्म होते हैं तो उनमें हम केवल apostrophe लगाते हैं, फिर s नहीं लगाते हैं. जैसे bird's wing, lady's purse. Turn the page please. We put apostrophe s after plural noun which do not end in s or es. जब कोई plural noun s या es पे ख़त्म नहीं होता तो हम उसमें apostrophe और फिर s लगाते हैं. Men's ties, women's sarees. Apostrophe s is normally not used with non-living thing. हम लोग non-living things के साथ apostrophe s का यूज़ नहीं करते हैं. The top of the page, not the page top. हम लोग कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को पोजेसिव में चेंज नहीं करते हैं. द बॉयज़ बैट, वन बॉय वन बैट. द बॉयज़ बैट्स, वन बॉय सेवरल बैट्स. बॉयज़ बैट, सेवरल बॉय वन बैट. बॉयज़ बैट्स, सेवरल बॉय सेवरल बैट्स. आप लोग इससे समझ गए होंगे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझाते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज किड्स. The sweets belong to the children. The children's sweets. The pencil belongs to Ravi. Ravi's pencil. You can fill the book with me. The collar belongs to the dog. The dog's collar. The test belongs to the class. The class test. The dress belongs to Pooja. Pooja's dress. The toy belongs to the baby. The baby's toy. Mr. Ghosh is my dash friend. Parents. Parents friend. These are my dash
friends, sons. These are my sons. We will only add apostrophe to it. We are going to our dash house, aunts, AUNT apostrophe and then S. Father is holding his children's hand. Five, 6, 7, 8, 9, 10. You have to do it yourself in the book itself. आपने ये बुक में ही करने हैं खुद अपने आप से, जैसे मैंने आपको ये 4 करके दिखाए हैं. Rewrite the following to show the possession. The poems written by Rabindranath Tagore. Rabindranath poems. Golden Shoe of the Princess. The Princess. Golden Shoe. The Shop of the Chemist. The Chemist's Shop. The Wings of the Bird. The Bird's Wings. The Blessing of the God. God's blessings. The Eye of Rupali. Rupali's eyes. 7, 8, 9 you will do it itself in the book. आपने कॉपी में नहीं करनी है, बुक में ही करनी है. Rewrite the sentences using apostrophe S or only the apostrophe. Please check whether the shoes of the students are clean. Please check whether, इतना आप लोग पहले ही लिखेंगे सेंटेंस में, और जो अंडरलाइन है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स लिखना है पूरा, फिर एपोस्ट्रॉफी लगाना है, और शूज़ आर क्लीन. द काउज ऑफ द फार्मर. द फार्मर्स एपोस्ट्रॉफी ओनली, cows. बाकी एज इट इज़ कॉपी करना है. द ऑफिस ऑफ माई सिस्टर. द सिस्टर्स एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों आएंगे, इज इन मुंबई. द सिस्टर्स ऑफ माई सिस्टर्स ऑफिस, सॉरी, माई सिस्टर्स ऑफिस इज इन मुंबई. द फादर ऑफ सुहाना. सुहाना's father इज़ अ चेस चैम्पियन. 5th आप लोगों ने खुद करना है. ये वाली एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में होगी, आप इसे नोटबुक में करेंगे. रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज डी ऑन पेज नंबर 23 आप लोगों ने नोटबुक में करनी है. एंड पोजेसिव एक्सरसाइज, पोजेसिव नाउन की डेफिनेशन भी आप लोगों ने कॉपी में करनी है. So this is all for the video. Till then, stay home, stay safe, and bye for now.